a challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Yes, hello everyone. Hello to all of you. So everyone please confirm beta, am I audible, am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. So I hope audio video is clear to all of you. और in the last class we have completed our discussion related to the traffic studies. ट्रैफिक स्टडीज़ वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज़ द ट्रैफिक कंट्रोल. So before starting the class, let me introduce myself for those who are new to this class or watching this class first time. So I am Kshitish Sachan. I have completed my MTech in Structures, qualified GATE 5 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam, AE exam of various states. My teaching experience in the field of GATE and ESE is more than 6 years, having 3 years research experience too. और सब्जेक्ट जो मैं डील करने वाला हूँ, आई विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, आरसीसी एंड सीपीएम. सो दीज आर माय सब्जेक्ट दैट आई विल कवर फॉर द एग्जाम गेट, ईएससी और जो भी आपके स्टेट्स के एई और जेई के एग्जाम है. फॉर दैट द डिस्कशन इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, रिलीवेंट फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज माई रेफरल कोड दैट इज KKS10. सो इस कोड की हेल्प से यू ऑल कैन एक्सेस ऑल द फ्री फीचर्स ऑफ अनअकैडमी. And while completing your subscription process with Unacademy, you can use this code to avail 10% off on your subscription cost. To start your preparation with Unacademy in a systematic way, in an organized way, you can complete your subscription process. 2 types of subscription are there. One is Plus and second is Iconic. So in the case of Plus, what you will get to live classes, live batches will provided to you. Weekly test will there. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलने वाले, अनलिमिटेड एक्सेस यू विल गेट, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस विल प्रोवाइडेड टू यू और साथ साथ यू कैन एक्सेस ऑल द क्रैश कोर्सेज. सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन. वन मोर ऑप्शन इज अवेलेबल दैट इज आइकोनिक. सो इन द केस ऑफ आइकोनिक व्हाट यू विल गेट,
So whatever features that I have explained for the plus, they are already included in the case of Iconic. In additional to plus features, you will get a personal coach, personal mentor will there, dedicated doubt clearing educators you will get. Study material will also provided to you in the case of Iconic. Study planner you will get, study booster sessions and personalized test analysis. So for both the subscription process, you all can use my referral code, that is KKS10, to avail 10% off on your subscription cost for Plus or for Iconic. So for personalized guidance, you can go for the Iconic subscription to complete your subscription process with the help of this code, that is KKS10, and also avail 10% off on your subscription cost. तो इस कोड की हेल्प से आप सभी अनअकैडमी के फ्री फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं. लाइक यू कैन अटेंड ऑल द फ्री क्लासेस ऑफ फ्री लाइव क्लासेस ऑफ ऑल एजुकेटर. And just to access all the free classes of all educator, you need to download the Unacademy Learner app and use this code to activate your free plan. After the activation of your free plan, with the help of this code, you will able to access all the interactive live classes of all educator. You all can participate in the poll to get your relative ranking. You can use this feature, that is raise a hand feature, to talk to your educator in a live class related to your doubts and queries. And you are going to get all the notification. आप simply download कर सकते हैं lectures note just after the class. You can download the PDF of the class and you can watch the live as well as recorded session anytime. So to attend all the free classes of all educator, just download the Unacademy app and use this code to activate your free plan. So if you are preparing for, if you are targeting for GATE and DSE 2023, तो नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 24 of November से. So for civil engineering, you can enroll for the batch R of the Arohan series. The discussion is bilingual और सब्जेक्ट जो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, that is the strength of material. GATE 2022 के लिए you can enroll for the batch B of rank improvement. Here also the discussion is bilingual. So you all can access all these batches. Complete your subscription process using this code and avail 10% off on your subscription cost. So with the help of this code also, you can participate in the free scholarship test, that is the Unacademy Combat. So mechanical, civil, electrical, electronics, CS and IT, all these branch student can participate for the Unacademy Combat. Weekly test होने वाला है, 60 minute duration का test होगा, 20 question will there. Original GATE level question you will get. Live test में आप लोग participate करने वाले हैं, all India live leaderboard you will get. And after the test, the detailed video solution will also provided to you by the top educator of Unacademy. और जो next combat होने वाला है, that will be mega combat. 28th November morning 11 AM, do participate. All these branch student can participate. So in this mega combat, top 200 rankers will get the scholarship based on their ranking. और साथ साथ 500 lucky participant will get the surprise gifts. Like these are the prize mentioned here. So yes, you all can participate in the free mega combat with the help of this code, that is KKS10. So just visit the Unacademy app and enroll yourself for the Unacademy Combat if you have not enrolled yet, and do participate in the Unacademy Mega Combat. So we have started our discussion for the traffic engineering. ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बातचीत करना हम लोगों ने स्टार्ट किया था. तो इसको टोटल डिस्कशन को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था. इफ़ यू हैव रिमेंबर, जस्ट टेक अ क्विक रिव्यू. एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं वॉट एवर टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो सबसे पहले आपने बात करा था ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स. यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में मेनली हम लोगों ने डिस्कशन किया था, दैट वाज रिलेटेड टू द विजन. तो विजन में आपने बात करी थी व्हाट डू यू मीन बाय द पेरिफेरल विजन, एक्यूट एंगल ऑफ विजन, आई साइट. तो इसका कंसेप्ट और न्यूमेरिकल हम लोगों ने कंप्लीट किया. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स. इन व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव डिस्कस अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक एंड गोइंग टू बी द डायनेमिक. तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल में आपने बात करी थी साइज क्या होने वाला है, डायमेंशंस रिलेटेड टू द डायमेंशंस एंड वेट. डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल में आपने डिस्कशन किया था रिलेटेड टू द ब्रेकिंग टेस्ट, और यू कैन से द ब्रेकिंग एफिशिएंसी. सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एफ, दैट वाज द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट,
और इसके बेसिस पे आपने ब्रेकिंग इफिशियंसी को डिफाइन किया था. फॉर दैट वी हैव परफॉर्म द ब्रेकिंग टेस्ट. तो टोटल 3 पैरामीटर थे, स्पीड ऑफ व्हीकल, ब्रेक अप्लीकेशन टाइम और कितना स्किड मार्क था, दैट वी हैव कैलकुलेटेड. So this was the first part of our traffic engineering discussion. That was the traffic characteristics. So I hope आप सभी ने इन क्लासेस को अटेंड कर रखा है. So those who have missed the classes, so on the same playlist इसी चैनल पर आपको अनअकैडमी गेट CE and CH पर ट्रैफिक हाईवे इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप इन सभी डिस्कशन को कंप्लीट कर सकते हैं. और सेकेंड पार्ट वी हैव स्टार्टेड अवर डिस्कशन फॉर द ट्रैफिक स्टडीज. So in traffic studies, we have discussed about the various studies, like we have discussed about the traffic volume study. We have discussed about the traffic speed study. और ट्रैफिक स्पीड स्टडी में आपने डिस्कशन किया था स्पॉट स्पीड स्टडी का, as you have also discussed about the speed and delay study. Then we have discussed about the traffic capacity study. We have discussed about the traffic flow characteristics study. We have discussed about the origin and destination study. और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिलेटेड टू द एक्सीडेंटल स्टडी. तो एक्सीडेंटल स्टडी का कंसेप्ट और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कल हम लोगों ने सॉल्व किया था. दैट वाज रिलेटेड टू द केस 1. When a moving vehicle is going to collide with the parked vehicle, in that case how we can calculate the various velocities. So in the last class, yesterday's class, we have discussed about this concept. और अगला जो पार्ट अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, that is going to be the traffic control device. तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो फ्रॉम दिस टॉपिक यू कैन एक्सपेक्ट अ 2 मार्क प्रॉब्लम. तो यहां से आपका एक 2 मार्क का प्रॉब्लम फॉर्म होता है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल. तो ऑल द कंसेप्ट पार्ट एज वेल एज ऑल द थ्योरेटिकल एप्लीकेशन पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्या क्या पढ़ना अपने को ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस में? देखो सिंपल सी बात है, पहले बेसिक समझ लेते हैं. तो बेसिक ये बोलता है कि जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड को पढ़ने के बाद नाउ वी आर इन द पोजिशन दैट वी कैन डिजाइन अ रोड प्रॉपरली. एक रोड के जितने भी विजुअल फीचर्स हैं इंक्लूडेड योर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट. Then we have discussed about the side distances. We have discussed about the horizontal alignment. Horizontal curve के केस में what are the design guidelines, what are the design requirements that we have covered. और last में we have also discussed about the vertical alignment of the road. So now we can say yes, we can design the properly design the roads. All the visual features related design guidelines we have discussed. अब यार एक रोड अगर आपने बना दी है, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? तो नेक्स्ट थिंग विल बी देयर विल बी द ट्रैफिक. और ट्रैफिक जब आएगा तो आपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर ली. प्रॉब्लम ये कि द रोड्स और द स्पेस इज लिमिटेड. अब डे बाय डे क्या हो रहा है? डे बाय डे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड आर इंक्रीजिंग, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, यस और नो? लाइफ स्टाइल इज चेंजिंग, यस. तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड. अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि एक रोड पे जो भी रोड हमने डिज़ाइन की है, वी विल डिज़ाइन अ रोड फॉर अ पर्टिकुलर डिज़ाइन लाइफ. जो भी रोड आप देख रहे हैं, लेट्स से द डिज़ाइन लाइफ ऑफ द रोड इज 10 ईयर. तो अगर किसी भी रोड की डिज़ाइन लाइफ 10 ईयर है, इसका मतलब क्या है? इफ द डिज़ाइन लाइफ ऑफ द रोड इज 10 ईयर, दैट मीन्स इट शुड बी सर्विसेबल. अगर आपने किसी रोड को 10 साल के लिए डिजाइन किया है तो आने वाले 10 साल तक दिस रोड शुड बी सर्विसेबल, इट शुड फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर. बट अगेन एक पैरामीटर आपने बोला कि सर डे बाय डे ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग. तो इन अ लिमिटेड रिसोर्सेज में आप चाह रहे हैं उसी रोड को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यूज कर पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज कर पाएं फॉर द मूवमेंट फ्रॉम ए प्लेस टू बी, यस और नो? यार सिंपल सी बात है, व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड यू हैव टू अलाइन, यू हैव टू अप्लाई द मैनेजमेंट टेक्निक्स. अदरवाइज क्या होगा? देयर विल बी कोलिजन. तो ऐसा बहुत जगह आपने ऑब्जर्व किया होगा इन योर सिटीज़, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं. सम एरिया, सम रोड्स आर देयर इन योर सिटीज़ जहाँ पर बहुत हैवी कंजेशन रहता है. और वो हैवी कंजेशन क्यों है? ड्यू टू द हाई ट्रैफिक वॉल्यूम, यस और नो?
ड्यू टू द हाई ट्रैफिक वहां पर क्या है, ड्यूरिंग द मूवमेंट देयर इज ए जाम, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उस मूवमेंट में क्या आ रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अब दो चीज़ें हैं ऐसी सिचुएशन में, एक तो आपके रोड की इफिशियंसी कम हो रही है, द एफिशिएंसी ऑफ द रोड इज डिक्रीजिंग इन दिस केस, फर्स्ट थिंग इज दिस, यस और नो। और दूसरा बात क्या है, दूसरी चीज़ ये देखने को मिल रही है आपको कि यूजर सेफ्टी इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर कंजेशंस होंगे, ट्रैफिक सब अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर हम ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करेंगे तो देयर विल बी हाई चांसेस ऑफ द कोलिजन एक्सीडेंट की वजह से भी क्या होने वाला, अल्टीमेटली द एफिशिएंसी ऑफ द रोड इज गोइंग टू बी डिक्रीज। सो आवर कंसर्न, पूरे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक ही कंसर्न था जिस पर हम लोग अब तक डिस्कशन कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द यूजर सेफ्टी। जो भी आपके रोड के यूजर हैं उसकी सेफ्टी को आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, एज वेल एज वी ऑल्सो वांट टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द रोड। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कंट्रोल डिवाइसेस, हाउ वी कैन control the movement of the traffic to achieve these things, so that we can provide the maximum safety to our user, so that we can achieve the maximum efficiency for the road। तो भाई क्या काम है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस का, ये अगर समझ में आ गया हो तो एक बार चैट बॉक्स में बता दो। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस का बेसिक डिस्कशन, बेसिक कहानी अगर क्लियर है तो यू कैन कंफर्म इन द चैट बॉक्स। और कोई भी डाउट्स एंड क्वेरी अगर अब तक के डिस्कशन में है तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। तो वेरियस अरेंजमेंट्स आर देयर जिनकी हेल्प से आप ट्रैफिक के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस सम ऑफ देम इंपॉर्टेंट, लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रैफिक साइन। हमारा पहला जो डिस्कशन होने वाला दैट विल बी रिलेटेड टू द traffic sign, then we will discuss about the traffic signal, and the last discussion will be intersection। ये तीन टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं अंडर दिस मेन टॉपिक दैट इज द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। तो शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन से डिस्कशन को स्टार्ट किया जाए। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? So let's start the discussion with the traffic sign. So what is the use? Why we are providing the traffic sign? आप सभी ने रोड पर कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ट्रैफिक साइन लगा हुआ जरूर देखा होगा, yes or no? You must have observed some traffic sign on the road. तो कुछ ओवरहेड साइन रहते हैं आपके, कुछ रोड के एजेस में, साइड्स में साइन आप प्रोवाइड करते हैं। तो वाई एज अ डिजाइनर व्हाट इज द नीड टू प्रोवाइड द ट्रैफिक साइन? तो ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द ट्रैफिक साइन इज वेरी सिंपल। एक रोड पर जो भी ट्रैफिक आपको मूव कर रहा है, आप उसको कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाह रहे हैं। अब इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि रोड पर जितने भी यूजर हैं हम सबको इंडिविजुअल जाके इंफॉर्मेशन पास करें, यस। तो यूज ऑफ द ट्रैफिक साइन इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू रोड यूजर। अपने रोड के यूजर को हम कुछ इंफॉर्मेशन पास करना चाह रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन किस किस तरीके की हो सकती है? ये इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो दिस में बी रिलेटेड टू योर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, यस और नो? कि फॉर द सेफ मूवमेंट यू शुड फॉलो दीज रूल्स, यू शुड नॉट वायलेट दीज रूल्स इन दिस पर्टिकुलर section of the road, otherwise there may be the chances of the collision, there may be chances of the accident. So some rules and regulations you want to pass on the information related to the rules and regulation. दूसरा आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है रिलेटेड टू द चेंज इन द जियोमेट्री, चेंज इन द जियोमेट्री ऑफ रोड। एक रोड की जियोमेट्री में किसी भी तरीके के चेंज हो रहे हैं, लेट्स से आगे चल के कोई नैरो सेक्शन है, वी हैव प्रोवाइडेड द स्पीड ब्रेकर, yes, so there is some change. So it is your responsibility that you should provide the information to your user
बिफोर द सिचुएशन, जब आपकी कोई भी सिचुएशन इस तरीके की है, कोई भी जियोमेट्री अगर आपकी चेंज हो रही है, तो टाइम रहते हुए आपको अपने यूजर को इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा देनी चाहिए, सो दैट अगर आप सफिशिएंट डिस्टेंस पहले अगर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द चेंज इन जियोमेट्री, इन दैट केस आपका व्हीकल क्या कर सकता है, आसानी से अपने मूवमेंट को, अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, क्या आपने कोई रोड की जियोमेट्री चेंज हो रही, लेट्स से अभी आपकी रोड की विड्थ थी, लेट्स से देयर इज अ विड्थ ऑफ 2 लेन रोड, और 2 लेन रोड की विड्थ आपको पता है एज पर IRC विदाउट कर्व दिस इज गोइंग टू बी 7 मीटर। अब किसी भी वजह से ड्यू टू एनी रीजन आगे चल के आपने इस रोड को सिंगल लेन कर दिया है, आगे चल के आपने इस रोड को सिंगल लेन कर दिया है, समथिंग लाइक दिस, हियर द लेन इज सिंगल, द विड्थ एज पर IRC इज गोइंग टू बी 3.75 मीटर। तो मैंने लगता है कि जो भी यूजर इस रोड पे मूव कर रहे हैं, वी शुड पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू आवर यूजर, यस और नो। और केवल इंफॉर्मेशन पास ऑन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, द यूजर शुड हैव सफिशिएंट टाइम। तो ऐसा नहीं अचानक से आपने सडनली कोई इंफॉर्मेशन दे दी, यहां पर साइन लगा दिया, यहां पर साइन लगा दिया और आगे चल के ही तुरंत जियोमेट्री को चेंज कर दिया। आप सभी को पता है कि इन एवरी सिचुएशन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्शन टाइम, यस और नो। किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो वी विल प्रोवाइड द ट्रैफिक साइन सच दैट आवर यूजर शुड हैव सफिशिएंट रिएक्शन टाइम, जितना टाइम उसको लगने वाला है टू कंट्रोल द व्हीकल। तो वी आर द प्लेसमेंट ऑफ द साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर किस साइन को लगाना है। और इसी जगह पे आपकी इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो आपने पढ़ा था रिलेटेड टू द विजन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो विजन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूजर विल ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल रिलेटेड टू द प्लेसमेंट ऑफ द ट्रैफिक साइन। तो देखते हैं क्या गाइडलाइन है, क्या IRC ने बता रखा आपको। तो यस, इंफॉर्मेशन में भी रिलेटेड टू द चेंज इन द जियोमेट्री ऑफ द रोड। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जनरल फैसिलिटीज। तो एक रोड पर, एक हाईवे में, फॉर एग्जांपल यू हैव प्रोवाइडेड द पेट्रोल पंप, यू हैव प्रोवाइडेड, देयर इज अ रेस्टोरेंट, yes, there is a fuel filling stations like this, there is a hospital, there is a emergency services. So various facilities we are going to provide for the road user, and we want to provide the information for the various road facilities. For that we will also use the traffic sign. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आप ट्रैफिक साइन का यूज कर रहे हैं। आई होप द बेसिक अबाउट द ट्रैफिक साइन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। To provide the information about these things to our user, we are using the traffic sign on the road. सर हमें क्या पढ़ना फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या डिस्कशन रहने वाला है इस टॉपिक में? कहानी तो सर समझ में आ गई, ये पूरी कहानी समझ में आ गई, बट व्हाट विल बी आवर रोल, इस बात को भी समझ लेते हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो इन जनरल देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ द ट्रैफिक साइन। अगर मैं ट्रैफिक साइन की बात करूं तो रोड पर आप 3 तरीके के ट्रैफिक साइन प्रोवाइड करते हैं। वन इज गोइंग टू बी योर रेगुलेटरी, मैंडेटरी और कंपल्सरी भी इनको बोलते हैं। तो वन इज गोइंग टू बी योर रेगुलेटरी, मैंडेटरी और कंपल्सरी साइन। अनदर इज गोइंग टू बी योर वार्निंग साइन, अनदर इज गोइंग टू बी योर वार्निंग साइन, और थर्ड जो होने वाले दैट इज गोइंग टू बी योर इंफॉर्मेटरी साइन। तो ये 3 तरीके के साइन आप यूज करते हैं। कहानी इसके बारे में हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, जैसा आप नाम से भी समझ सकते हैं और जो मैंने डिस्कशन आपको प्रोवाइड किया है उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या रेगुलेटरी और मैंडेटरी और कंपल्सरी साइन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, these signs will be related to the rules and regulation। जो भी आपके ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए जो आप साइन यूज करने वाले दैट आर गोइंग टू बी रेगुलेटरी साइन। वार्निंग साइन का मतलब क्या है? यू जस्ट नीड टू वार्न योर ड्राइवर रिलेटेड टू द चेंज इन द जियोमेट्री ऑफ द रोड। कोई भी रोड की जियोमेट्री, अगर इसी ऑर्डर में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया था, तो रिलेटेड टू द रूल्स एंड रेगुलेशन वी आर यूजिंग द रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। Related to the change in the geometry of the road,
वी आर यूजिंग द वार्निंग साइन। इस केस में हम लोग कौन सा साइन यूज कर लेंगे? वी विल यूज द वार्निंग साइन। एंड जस्ट टू प्रोवाइड दिस जनरल इंफॉर्मेशन related to the facilities to our user, we are going to use the informatory sign. We are going to use the informatory sign. अब सर हमें कैसे पता चले? जैसा पहले वाले साइन के बारे में अगर बात करें तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अगर कहीं पे भी इस तरीके का साइन प्रोवाइड किया गया है, यू नीड टू फॉलो, देयर इज ए कंपल्सन, आपको इस साइन को फॉलो करना ही करना है। अगर आप इस साइन को फॉलो नहीं करेंगे, यू विल बी बुक्ड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। तो आप सभी को पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन जो आप देखते हैं स्पीड लिमिट। अगर कहीं पे स्पीड लिमिट का साइन लगा हुआ है कि भाई यू कैन नॉट मूव विद द ग्रेटर स्पीड दैट 40 kmph, मैक्सिमम स्पीड जो आपकी हो सकती है वो 40 kmph है। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को उसको वॉयलेट करेंगे, उस साइन को, ऐसी रोड पर जहाँ पर स्पीड लिमिट का साइन लगा हुआ तो 40 kmph का, और अगर आप वहाँ पर मूव कर रहे हैं 50 kmph 60 kmph दैट इज हायर देन, in that case there will be the challan. So yes, these signs are mandatory, these signs are compulsory, you need to follow. आपको फॉलो करना ही करना है, you have no choice. अगर आप इसको वायलेट करेंगे you will be booked under motor vehicle act. Warning sign just for the to ensure the safety of the user. यूजर की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए आपने जो भी चेंज इन जियोमेट्री है रोड की, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने यूजर को प्रोवाइड कर दी है। एंड नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द इंफॉर्मेटरी साइन रिलेटेड टू द फैसिलिटीज। अब एक बात तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या क्वेश्चन आता है कि सर रोड पे तो कई तरीके के ट्रैफिक साइन रहते हैं, देयर आर वेरियस साइंस, ट्रैफिक साइंस दैट दे हैव प्रोवाइडेड ऑन द रोड। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा साइन रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन है और कौन सा साइन एक सिंपल वार्निंग या इंफॉर्मेटरी साइन है? एज ए यूज़र हमें पता होना चाहिए ना भाई, अदरवाइज हम सारे साइन को अगर एक ही तरीके से कंसीडर कर रहे हैं तो कहीं पर अगर मैंडेटरी और कंपलसरी साइन प्रोवाइड किया गया था और आपको पता ही नहीं कि भाई ये रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन है और आपने उसको वायलेट कर दिया, यू विल बी बुक्ड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिकेशन, और यही स्पेसिफिकेशन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो क्यों प्रोवाइड करते हैं ये तो समझी गए हो, वाई वी आर प्रोवाइडिंग। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस साइंस सो दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन साइंस को। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। और यू कैन से द कंपलसरी साइन। देखो इनकी जनरल जो स्पेसिफिकेशन है, अगर इनकी जनरल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो तीन चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या तीन चीज़ें पता होनी चाहिए? एक तो सर इसका शेप कैसा रहता है, एक तो इनका शेप कैसा रहता है। और आज की क्लास के बाद जरूर ऑब्जर्व करिए, जब कभी भी रोड पे जाइए, ऑब्वियसली यू आर कनेक्टेड विद द रोड्स, तो सुबह से शाम तक आपको रोड पे तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा ना। तो जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द साइन एंड ट्राई टू दिस यू कैन कंसीडर एज अ प्रैक्टिस, और आइडेंटिफाई करिए कौन से साइन आपके रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन है और कौन से साइन आपके जस्ट सिंपली वार्निंग साइन है या फिर इंफॉर्मेटरी साइन है। तो शेप, बैकग्राउंड कैसा रहने वाला है, बैकग्राउंड कैसा रहने वाला है और बॉर्डर कैसा रहेगा, ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन की, तो जनरली यू विल फाइंड, वाई आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली अभी आपको पता चल जाएगा, वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड जनरली और जनरल, यू विल गेट टू नो। तो शेप अगर इनकी बात करें तो शेप विल बी सर्कुलर, इन साइन का जो शेप होने वाला दैट विल बी सर्कुलर इन शेप। बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो बैकग्राउंड विल बी वाइट, बैकग्राउंड वाइट रहेगा और बॉर्डर जो होगा हमारा रेड होगा। मतलब इतनी अगर बात कर रखी हम लोगों ने, तो दिस साइन विल लुक समथिंग लाइक दिस। जितने भी साइन आपके इस तरीके के सिचुएशन में दिए गए हैं, जितने भी साइन आपने इस तरीके से प्रोवाइड कर रखे हैं, दे आर हैविंग द सर्कुलर शेप, हैविंग द रेड बैकग्राउंड एंड वाइट बॉर्डर, सॉरी हैविंग द रेड बॉर्डर एंड वाइट बैकग्राउंड। दिस इज द स्पेसिफिकेशन, यू कैन कंफर्म। शेप सर्कुलर है, बिल्कुल है, बैकग्राउंड वाइट है, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड है, बॉर्डर रेड है। ऑल दीज आर द रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। ये सभी के सभी साइन जो आपको मिलने वाले इस तरीके से,
वो रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन होंगे। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देयर आर टू एक्सेप्शंस, दो एक्सेप्शंस हैं इसमें जो आपको पता होने चाहिए, और ये एक्सेप्शंस हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन द एग्जाम यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सपेंशन एक्सेप्शंस। देखो यार सिंपल सी बात है, बहुत सारे साइन है, तो वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल द साइंस, यस और नो, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ जनरलाइज वे में इसको डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट वी विल एबल टू आंसर द क्वेश्चन। टू एक्सेप्शंस आर देयर। अब ये दो एक्सेप्शंस क्या है, इस बात को समझ लो। यस, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन का डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। सो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन कंप्लीट किया है उसके बेसिस पे वी नो द जनरल स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन पता चल गई, बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर देयर आर टू यस, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से क्लास इंटरप्ट हो रही है। सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक, दैट इज द ट्रैफिक साइन। तो ट्रैफिक साइन में हम लोग बात कर रहे थे जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। और रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन में आपने जनरल स्पेसिफिकेशन में देखा कि शेप क्या रहने वाला, शेप विल बी सर्कुलर, बैकग्राउंड इज गोइंग टू बी द व्हाइट एंड बॉर्डर विल बी रेड। बट देयर आर टू इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस एज यू कैन सी, वन इज गोइंग टू बी योर स्टॉप साइन। और स्टॉप साइन में आपने बात करी कि द शेप ऑफ द स्टॉप साइन इज गोइंग टू बी द ऑक्टागोनल, बैकग्राउंड रेड होगा और बॉर्डर विल बी व्हाइट। वन मोर एक्सेप्शन इज देयर दैट इज रिलेटेड टू द गिव वे साइन। तो अगर गिव वे साइन की बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी द गिव वे साइन। रेफर दिस डायग्राम। तो ये कुछ इस तरीके का आपका गिव वे साइन होने वाला है। इन्वर्टेड ट्रायंगल विल बी देयर, और हेयर यू विल सी देयर विल बी मैसेज लाइक जस्ट वेट। यहां पर अपना लिखा रहने वाला है गिव वे। So if we talk about the specification of the give way sign, as you can see the shape is going to be the inverted triangle. Shape is going to be the inverted triangle. The border will be off. Border इसका रेड कलर का रहने वाला है, और जो बैकग्राउंड होगा बैकग्राउंड विल बी ऑफ वाइट कलर। So these are the exceptions. One is going to be your stop sign and another is going to be your give way sign. ये दोनों के दोनों साइन आपके रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन है, बट दे आर नॉट फॉलोइंग द जनरल स्पेसिफिकेशन लाइक सर्कुलर शेप, व्हाइट बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है। और यस, दीज आर द कंपल्सरी साइन। तो वायलेशन ऑफ दिस साइन, वायलेशन ऑफ दिस साइन will be booked under मोटर व्हीकल एक्ट। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जहां पर भी कहीं पे भी अगर आपको रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन दिखे तो यू नीड टू फॉलो द गाइडलाइन, आपको इसकी गाइडलाइन फॉलो करनी है। तो आई होप द डिस्कशन अबाउट द रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बात करें बेटा। So what are some example? Let's see some example related to the mandatory or regulatory sign. The most common sign that you have observed, that is going to be your speed limit sign. This is your speed limit sign. जहां पर भी ये स्पीड लिमिट का साइन है, मतलब आप इस स्पीड से ज्यादा पे मूव नहीं कर सकते। वन मोर साइन इज देयर, दैट इज योर वन वे साइन। दैट इज योर वन वे साइन। That means the movement is allowed in only one direction. Yes. No U-turn, no overtaking, no overtaking sign. So it will be something like this. This is your no overtaking sign. एक साइन आपने और जो ऑब्जर्व कर रखा है, दैट इज योर नो पार्किंग साइन।
no parking sign. These are some example related to the रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन. ये कुछ आपके रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन है. एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो यहाँ पर है दैट इज रिलेटेड टू द दिस साइन. तो ये जो साइन आप देख पा रहे हैं दिस इज द साइन ऑफ नो पार्किंग नो स्टॉपेज. तो जहां पर भी ये साइन लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, वहां पर आप व्हीकल को पार्क नहीं कर सकते हैं और साथ साथ टू स्टॉप द व्हीकल इज ऑल्सो नॉट अलाउड. व्हीकल को स्टॉप करना भी ऐसी कंडीशन पे अलाउ नहीं है. द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी योर वार्निंग साइन. यहां पर कोई एक्सेप्शंस नहीं है. तो अगर वार्निंग साइन की बात करें, वी टॉक अबाउट द वार्निंग साइन, तो सी द स्पेसिफिकेशन. See the specification of warning sign. So these sign will be in upward triangular shape. ये साइन जो रहने वाले हैं that will be upward triangle shape. If we talk about the shape, this is going to be the upward triangle. Border will be of red color. Border जो रहने वाला है that will be of red color. Background जो होगा आपका that will be of white color. क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू वार्न द यूजर रिलेटेड टू द चेंज इन द जियोमेट्री ऑफ द रोड. तो रोड की जो भी आपके जियोमेट्री में चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वार्निंग साइन. इफ वी टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस साइन. This is your speed breaker sign. This is your speed breaker sign. Yes or no? You must have observed this sign. So this is your crossroad sign. Crossroad sign. Narrow bridge ahead. This is your narrow bridge अहेड साइन. एक साइन आपने और देखा होगा इस तरीके का. तो गैप इन मीडियन, गैप इन मीडियन साइन जो आप बोलते कि डिवाइडर में जहां पर यू टर्न के लिए स्पेस अलाउड है, तो दैट इज रिलेटेड टू द चेंज इन द जियोमेट्री ऑफ द रोड. तो फॉर दैट वी आर प्रोवाइडिंग दिस साइन. तो यू शुड नो ऑल द स्पेसिफिकेशन related to the shape, related to the border and related to the background. So I hope this discussion is clear to all of you. और तीसरा जो साइन है आपका that is your informatory sign. So generally you will find these signs will be in the rectangular in shape. ये आपको rectangular shape में दिखने वाले. ऐसा जिनकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है. Any sign may be considered as the informatory sign, क्योंकि हर साइन की हेल्प से अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ही पास ऑन कर रहे हैं टू योर ड्राइवर, टू योर व्हीकल, टू योर यूज़र. तो अगर इनकी बात करें तो लेट्स से दिस इज योर हॉस्पिटल साइन. कहीं पे आपने हॉस्पिटल का साइन, पेट्रोल पंप साइन, रिफिल स्टेशन भी आप इससे बोल सकते हैं, यस और नो, एंड होटल साइन. तो दीज आर सब सर्टेन एग्जाम्पल. और अगर मैं बात करूं वन मोर साइन इज देयर दैट इज द डायरेक्शनल साइन. तो डायरेक्शनल साइन भी जो आपके हैं दैट विल बी योर इन्फॉर्मेटरी और मैंडेटरी साइन. तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ द साइन. तो दिस इज योर सिटी ए, लेट्स से दिस इज योर सिटी बी और प्लेस बी, एंड दिस इज योर प्लेस सी. जनरली दीज साइंस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, दिस विल बी द ओवरहेड साइन. ऐसे साइन आपको देखने को मिलेंगे दैट विल बी द ओवरहेड साइन जो आपको डायरेक्शंस के बारे में बता रहे होंगे. सो दीज आर द important sign that you should know. So in this way we have completed our discussion related to the traffic sign. तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दी, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर दी, चेंज इन जियोमेट्री की बात कर दी, अपने यूजर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज गोइंग टू बी द सिग्नल. तो ट्रैफिक सिग्नल के बारे में हम लोग तो कल से बात स्टार्ट करेंगे, बट इसका बेसिक समझ लेते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल क्यों डिजाइन करना पड़ रहा है. यू मस्ट हैव एनकाउंटर द सिग्नल, यस और नो.
तो इस तरीके के सिग्नल लाइट्स आपने देख रखी होंगी, रेड लाइट विल बी देयर, ग्रीन विल बी देयर, एम्बर विल बी देयर, एम्बर ग्रीन विल बी देयर, दिस विल बी द सीक्वेंस। तो वी विल हैव द डिटेल डिस्कशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट उसके पहले कुछ हमें ट्रैफिक के ऑपरेशन पता होने चाहिए। तो व्हाट आर द वेरियस ट्रैफिक ऑपरेशन, जब आपका ट्रैफिक मूव करता है तो व्हाट आर द पॉसिबल कंडीशंस। तो 4 तरीके के ट्रैफिक ऑपरेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी योर मर्जिंग ऑफ द ट्रैफिक। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये ABC जो ट्रैफिक हो रहे थे वो मर्ज होकर दे आर फॉलोइंग द, दे आर मेकिंग द ट्रैफिक D। तो दिस इज योर मर्जिंग ट्रैफिक ऑपरेशन, दिस इज योर मर्जिंग ट्रैफिक ऑपरेशन। Similarly, you can observe the diversion. So this is going to be your ABC. After this point, the traffic is diverting. तो merging, diverging, crossing you may observe. तो एक ट्रैफिक ऑपरेशन आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर क्रॉसिंग एंड द लास्ट इज गोइंग टू बी योर वीविंग। अब वीविंग का गेम क्या है, जहां पर मर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों दिखे आपको, जहां पर मर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों होने वाले हैं, ऐसे ट्रैफिक ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं वीविंग ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? वीविंग ऑपरेशन। अब देखो यार, जब ट्रैफिक तुम्हारा मूव करेगा और रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है, जैसा आपने अभी डिस्कस कर रखा है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो देयर मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं। समझना जरा इस बात को ध्यान से। तो पहले मैं तुम्हें नीड समझा देता हूं, एक ट्रैफिक सिग्नल की नीड क्या है। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं टू लेन टू वे ट्रैफिक। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिचुएशन। ऑल्दो वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी क्या अगर डिस्कशन की बात करूं तो इंटरसेक्शन वो प्लेस होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा की रोड्स मिलती हैं। अगर दो, फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन रिफर इन दिस डायग्राम, हेयर यू कैन से दिस इज द रोड A एंड दिस इज द रोड B, दे आर मीटिंग। प्रॉब्लम इस एरिया में, प्रॉब्लम इस वाले पोर्शन पे है। क्यों? क्योंकि अगर रोड A की आप बात करते तो लेट्स से दिस द रोड कंडीशन ऑफ द रोड A इज गोइंग टू बी 2 लेन 2 वे ट्रैफिक। सिमिलरली फॉर द रोड B, द रोड ट्रैफिक कंडीशन इज 2 लेन 2 वे। यहां पर भी ट्रैफिक कंडीशन क्या है? 2 लेन 2 वे ट्रैफिक है। अब हो क्या रहा है, समझो बात को। लेफ्ट लेन को फॉलो करते हैं भैया इंडिया में, वी आर फॉलोइंग द लेफ्ट लेन। तो यहां से ट्रैफिक इस तरीके से मूव कर रहा है, हेयर द ट्रैफिक इज मूविंग लाइक दिस। तो ये सभी ट्रैफिक आपको दिख रहा है जो कि मूव कर रहा है, यस और नो। बट सम मोर ऑपरेशंस विल बी देयर, ट्रैफिक के कुछ और ऑपरेशंस भी होने वाले हैं। कैसे? तो यहां से भी तो ट्रैफिक आएगा, 2 लेन 2 वे ट्रैफिक है, तो इन दिस वे द ट्रैफिक मूवमेंट इज देयर। अब यहां पर तो 2 लेन है आपके पास, बट दिस पोर्शन एज यू कैन सी एट द इंटरसेक्शन, दिस इज द कॉमन पोर्शन। ये रोड A और रोड B का कॉमन पोर्शन है। तो मुझे नहीं लगता यहां पर ट्रैफिक के मूवमेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं। अब देखो ट्रैफिक कहां, कौन कौन सा ट्रैफिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जो ट्रैफिक आ रहा है वो स्ट्रेट मूव कर सकता है। रिफर दिस डायग्राम, इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर जो ट्रैफिक है वो लेफ्ट भी जाना चाह सकता है, यहां पर जो ट्रैफिक है वो राइट भी जाना चाह सकता है। 3 तरीके के ट्रैफिक आपको मेनली देखने को मिलेगा, स्ट्रेट ट्रैफिक, और इसी को आप बोलते हैं थ्रू ट्रैफिक। दिस इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, दिस इज गोइंग टू बी योर राइट टर्निंग ट्रैफिक, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेट ट्रैफिक। भैया केवल यही ट्रैफिक थोड़ा था, ऐसा ट्रैफिक तो आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेट ट्रैफिक, दिस इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, दिस इज गोइंग टू बी योर राइट टर्निंग ट्रैफिक। सेम विद दिस लेन, हर लेन की बात करते हैं भाई। सेम विद दिस लेन, स्ट्रेट ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक, देयर विल बी द लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक। अगर यहां का भी मैं डिस्कशन कंप्लीट कर दूं तो दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेट ट्रैफिक, दिस इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर राइट टर्निंग ट्रैफिक। तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसी सिचुएशन पे ये जितने भी पॉइंट तुम्हें दिख रहे हैं, दीज आर द पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। अगर आपने सभी ट्रैफिक को, सभी व्हीकल को फ्रीली मूव करना अलाउ कर रखा है, तो इस तरीके के टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो होने वाले हैं 2 लेन 2 वे, जब दोनों रोड 2 लेन 2 वे हैं, वहां पर टोटल पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो हैं वो 24 हैं इन द केस ऑफ अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन।
क्या इस इंटरसेक्शन में कोई भी आपने सिग्नल वगैरह प्रोवाइड किया था क्या? नहीं। जो जहां पर जाना चाहता है फ्रीली जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जिस भी कंडीशन पे जहां पर भी मूव करना चाह रहे हैं सब कुछ अनकंट्रोल्ड है। और अगर दोनों रोड का ट्रैफिक, दोनों लेन का ट्रैफिक अगर अनकंट्रोल्ड वे में मूव करता है तो ऐसी सिचुएशन पे आपको टोटल पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो दिख रहे हैं ड्यू टू द वेहिकुलर मूवमेंट, दीज आर 24 कॉन्फ्लिक्ट्स आर पॉसिबल। 24 कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। क्या ऐसा आप चाहते हैं कि आपके ट्रैफिक के मूवमेंट, अरे यार यहां पर तो ऑलरेडी कंजेशन है ना, यहां पर तो आपको ऑलरेडी कंजेशन दिख रहा है। अगर इस तरीके से आपने ट्रैफिक को अलाउ कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, एक्सीडेंट होंगे, जिसकी वजह से क्या होने वाला है? जाम लगने वाला है। जो मेन दो कंसर्न थे हमारे, उन दोनों ही फुलफिल नहीं कर पाएंगे। पहला कंसर्न क्या था कि हमारे रोड की यूजर की सेफ्टी मैक्सिमम रहे, आप यहां पर सेफ्टी को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और दूसरा कंसर्न था हमारा कि हम रोड की इफिशियंसी को मेंटेन कर पाएं। तो ड्यूरिंग इन दिस सिचुएशन हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू डिजाइन द ट्रैफिक सिग्नल। देखो, हम किसी को ये तो नहीं बोल सकते कि यू कैन नॉट गो लेफ्ट, यू कैन नॉट गो राइट, यू कैन नॉट गो स्ट्रेट। लेफ्ट टर्निंग वाले ट्रैफिक को आपको लेफ्ट भी ले जाना है, राइट टर्निंग वाले ट्रैफिक को आपको राइट में भी मूव कराना है, और स्ट्रेट ट्रैफिक जो जाना चाह रहा है उसको स्ट्रेट भी भेजना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? इन दिस सिचुएशन वी विल गो फॉर द ट्रैफिक सिग्नल। और ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जब हम पढ़ लेंगे, वी विल प्रोवाइड द ट्रैफिक सिग्नल एट दिस इंटरसेक्शन। तो ये एग्जाम्पल मैं दोबारा से लेने वाला हूं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल। जब हम ट्रैफिक सिग्नल के डिस्कशन को कंप्लीट कर लेंगे, देन अगेन वी विल सी द एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, जहां पर आप ये देखने वाले हैं कि हर व्हीकल हर डायरेक्शन में जा सकता है। लेफ्ट टर्निंग लेफ्ट भी जा सकता है फॉर रोड ए एंड फॉर रोड बी विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जिसको भी जिस डायरेक्शन में जाना वो मूव कर पाएगा। और दैट थिंग्स वी विल अचीव विद द हेल्प ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का रहने वाला, दैट विल बी द ट्रैफिक सिग्नल। तो वी विल सी सम बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डिजाइन ऑफ सिग्नल, दैट इज द डिजाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। और इसके लिए हम लोग एक मेथड की बात करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द वेबस्टर्स मेथड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिफोर हैविंग द डिस्कशन फॉर द वेबस्टर्स मेथड, वी विल डिस्कस सम बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू द सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी लाइक फेज क्या होता है, साइकिल क्या होता है, रेड टाइम, ग्रीन टाइम, एम्बर टाइम, ग्रीन इंटरवल, चेंज इंटरवल, all these some basic terminology we will discuss. After that we will see how we can design the signal by the Webster method, and that will be the next discussion. ये कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट मिस द क्लास। सो आज की क्लास का डिस्कशन यही रखते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया डिस्कशन रिलेटेड टू द ट्रैफिक साइन। वी हैव डिस्कस द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वेरियस साइन एंड वी हैव अंडरस्टूड द नीड और यू कैन से द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल। तो अनकंट्रोल्ड वे में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, हम इन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करके जीरो तक लाएंगे और सभी जगह पे ट्रैफिक का मूवमेंट होगा विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। So that will be our tomorrow's discussion. So this was all about for this class. So I hope the discussion is clear to all of you. यहाँ तक का सभी डिस्कशन सभी को क्लियर है। Yes. So I hope you all are using this feature that is Unacademy Ask a Doubt feature, where you can discuss your doubts and query. और आप उसके लिए you can upload your doubts and query. You will get the exact solution in your comfortable language, English और हिंदी as per your suitability of time. तो आप सभी इस फीचर को यूज कर सकते हैं। You can clear your unlimited doubts. So do use this feature, that is Unacademy Ask a Doubt feature. This is my Telegram group. तो जो भी लोग आप लोगों में से मेरे से कनेक्टेड नहीं है, तो आप सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं रिलेटेड टू योर डाउट्स एंड क्वेरी। और to get regular update about all my classes and for the PDFs of the YouTube class, you all can join this Telegram group. You can simply search KKS10 on the Telegram, or you can follow this link to join the Telegram for the regular update about all my classes. Or as all of you know, you can avail this offer to start your preparation with Unacademy in a systematic way, in an organized way. Complete your subscription process and avail this offer. To in the 12-month subscription cost, you are getting additional 3 months free of cost. And to avail this offer, you all can use this code, that is KKS10.
And just by applying this code, you will also get 10% referral code discount while completing your subscription process with Unacademy. To complete your subscription process, you can visit the Unacademy app or website. तो आप गेट और ESE के लिए अपने सब्सक्रिप्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर द प्लस और यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक. So in the case of plus, you can go for the 12, 18 or 24 month subscription. These are the pricing for your plus subscription. And here you can see the long-term subscription is going to be economical for all of you. Same with the Iconic. In the case of Iconic, you can go for the 12, 18 or 24 month subscription. These are the pricing for your Iconic subscription. In this way, you can apply this referral code, that is KKS10. And just by applying this code, you can avail all the offer. And you can also avail 10% off on your subscription cost for Plus or for Iconic subscription. So in this way, you can complete your subscription process and you can join the batches for your GATE and ESE 2023 exam. So this was all about for this class. So if you are getting benefited from all these sessions, do like and share the session, subscribe the channel and hit the bell icon for the regular update. Thank you everyone. Keep learning. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.